فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا قبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني. فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساقة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساقة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جد. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي وصاحب لواعي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم قضيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله.
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضحية ولا أرض مضحية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، أنا علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا حميد وحي الله، إنه نعم قد أذنت لكم. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال: لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
फ़क़ाल अली लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसना हाज़ा तहतल किसाअ मिनल फ़ज़ल इंदल्लाह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी बअसनी बिलहक़ नबिय्या वशफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीह जम्अ मिन शीअतिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अलिय्युन इज़्मुल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शिअतुना व रब्बिल कअबा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़ नबिय्या वशफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीह जम्अ मिन शीअतिना व मुहिब्बिना वफ़ीहिम महमूमुन इल्ला वफ़र्रजल्लाहु हम्मा। इलाही आमीन। वला महमूमुन इल्ला वकशफ़ल्लाहु गम्मा। इलाही आमीन। वला तालिब हाजतिन इल्ला वक़ज़ल्लाहु हाजतहु। इलाही आमीन। फ़क़ाल अली इज़्मुल्लाहि फ़ुज़ना वसअदना वकज़ालिक शिअतुना फ़ाज़ू वसअदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व रब्बिल कअबति वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि सलाम। या तिलावत कर दो। तिलावत तो पहले होनी चाहिए थी। आप पहले फ़ोन पे या वॉइस कर दीजिए ना कि पहले कुरान की तिलावत कर लो। अगर ऐसा ही कुछ था तो आप मुझे सलाम तो बहुत हैं, लेकिन मसला ये है ना कि अब तिलावत तो बनती नहीं है, सलाम ही बनता है हदीस से। निकाल देगा दिन कोई भी निकाल। हाँ नहीं, मेरे पास वो नहीं है ना, आप मुझे निकाल के दे दें, जाके नमाज़ पढ़नी। भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा। न जाने किस तरह, न जाने किस तरह हक मांगती रही ज़हरा। भर दरबार में सनद के टुकड़े हवा में उड़ा के हंसने लगा। रसूल ज़ादी से गुस्ताख ऐसे कहें
बता वो कौन सी, बता वो कौन सी जागीर है तेरी ज़हरा। भरे दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा। भरे दरबार में हसन हुसैन से सच्चे गवाह भी झूठ लाए। रुला के बीबी को जालिम जरा न शर्माए। भुला न पाएगी, भुला न पाएगी उम्मत की बेरुखी ज़हरा। भरे दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा। सनद के टुकड़े हवा में उड़ा के हंसने लगा। रसूल ज़ादी से गुस्ताख ऐसे कहने लगा। बताओ कौन सी, बताओ कौन सी जागीर है तेरी ज़हरा। भरे दरबार में सियाह बाल जो माँ के सफ़ेद तर देखे। तौकीर कैसे कहूँ बेटियों ने सर पीटे। गई थी जिस तरह, गई थी जिस तरह घर है थकी थकी ज़हरा। भरे दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा। हसन हुसैन से सच्चे गवाह भी झूठ लाए। रुला के बीबी को जालिम जरा न शर्माए। भुला न पाएगी, भुला न पाएगी उम्मत की बेरुखी ज़हरा। भरे दरबार में पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। क्या हाल ये उम्मत
ने ज़हरा का बनाया है। पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, और ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है। पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। दो ऐसे जनाज़े हैं, दो ऐसे जनाज़े हैं, तारीक़ी में जो उठे। दो ऐसे जनाज़े हैं, तारीक़ी में जो उठे। बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे। एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है। पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस रोज़ के हो इज़्ज़त समान शक़्क़त। जिस रोज़ के हो इज़्ज़त समान शक़्क़त। ज़ाहिर हो मानी ये नुजूमुन कदरत। बाबा से कहेंगी फातिमा, या हज़रत। बाबा से कहेंगी फातिमा, या हज़रत।
ये ज़म्बिन कुतलात जिस रोज़। फातिहा। जब खल्क से वक्त सफरे फातिमा तब ज़ैनब शबीर को पास अपने बुला रोई बहुत और बेटे को सीने से लगा ज़ैनब के दिया हाथ में हाथ और ये सुना ऐ ज़ैनब बेकस मेरी दौलत से खबर महबूब इलाही की अमानत से खबर बेटी इसे ज़हरा ने बड़े दुख से है पा अरे ये रूह मेरे जिस्म की है गेसुआ समझी से आँखों की ज़िया घर का उजाला अरे हुजरे से कभी गर्म हवा में न निकाल अरे सोई हूँ तो पहले इसे सीने पर सुला अरे चक्की भी जो पीसी है तो गोदी में लिटा लाडली इस लाल का दुश्मन है ज़मा शबीर को मेरे नजरे बद से बचा अरे तकलीफ भी सह लीजियो ईज़ा भी अरे सदके गई मादर की वसीयत ना भूला हर रंज में इस भाई के काम आई अरे जाए ये जिधर साथ चली जाई और फिर रोई बहुत मिलके गले बेटों से ज़हा अरे फरमाया तुम्हें दूल्हा बने आह न दे अरे फिजा से कहा कब्रे नबी पर इन्हें ले रोए ना मेरे सामने ये इनको तू ए फिजा कभी रंज इन्हें होने न देना प्यारों को मेरी लाश पे भी रोने न दे प्यारों को मेरी लाश पे भी रोने न दे जब खल्क से वक्त सफर
फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारगाहे इलाही में शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद मुताल ने हम सब को ज़िक्र नबी व आले नबी में आने की, ज़िक्र नबी व आले नबी का एहतमाम करने की और ज़िक्र नबी व आले नबी आकर पढ़ने की, इस ज़िक्र को करने की अल्लाह ने हम सब को ये सआदत, ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम सब इस तौफ़ीक़ इलाही पर बारगाहे इलाही में शुक्रगुजार हैं। अयाम सोगवारी बिनते रसूल अकरम हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अयाम शहादत हज़रत सैयदा हैं, अयाम अज़ाए हज़रत सैयदा हैं, अयाम इहयाए फ़ज़ाइल हज़रत सैयदा हैं, अयाम इहयाए मसाइब सैयदा हैं और अयाम इहयाए राह सैयदा हैं। ये वो अयाम हैं कि जिनमें हम सब के ऊपर फरीज़ा है कि हम फ़ज़ाइल सैयदा, मसाइब सैयदा, तहज़ीब सैयदा, तमद्दुन सैयदा, मकाम सैयदा, सीरत सैयदा और राह सैयदा को ज़िंदा करें।
अयाम फ़ातिमिया गुज़िश्ता शब भी मैंने आपकी खिदमत में बयान किया। अयाम फ़ातिमिया आगाज़ आशूरा है, आगाज़ क़याम हुसैनी क़याम फ़ातिमी है। सैयदुश्शहदा ने करबला के अंदर जो कदम उठाया वो नतीजा है क़याम फ़ातिमी का, क़याम हज़रत सैयदा का नतीजा है करबला। क्योंकि हज़रत सैयदा गुज़िश्ता शब मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था कि जो सानवी मसाइल हमारे जहन के अंदर हैं, हज़रत सैयदा उन सानवी मामलात को अपनी नज़र में रखती थीं, मगर एक बुनियादी मसले को लेकर हज़रत सैयदा मस्जिद नबवी में आई, एक बुनियादी मसला। और यकीनन जज्बाती लोग, एहसासाती लोग, इमोशंस के अंदर बहने वाले लोग बेस को नहीं देखते, बुनियाद को नहीं देखते, वो सानवी इश्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं। तारीख़ इंसानी आप देखें, सानवी मसाइल के ऊपर एज अ कौम, एज अ नेशन, मसलन जस्ट एग्जाम्पल, हम एज अ मिल्लत पाकिस्तान अगर हम अपनी बात करें तो आज हम किन इश्यूज को डिस्कस करते हैं? बल्कि मैं बिला मुगालता अगर कहूं तो हम नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं, जो इश्यूज नहीं होते, लेकिन हमें उन इश्यूज के ऊपर लगा दिया जाता है। क्योंकि जज्बाती कौमों को हमेशा इसी तरह लगा के रखा जाता है कि आप लगे रहो और बुनियादी अपने हुकूक और बुनियादी मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं करो। हजरत सैयदा जज्बाती खातून नहीं है, हजरत सैयदा एहसासाती खातून नहीं है, बल्कि कल मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था, अकीला बनी हाशिम जिसकी गोद में पले वो फातिमा है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार पता है ना कि क्या किया है, क्या किया है बीबी ने, कितना बड़ा जिहाद किया, शहदा के रास्ते को जिंदा किया ज़ैनब बिनते अली ने, शहदा के रास्ते को। असर आशूर करबला खत्म हो गई थी ना ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन शहदा के रास्ते को, शहदा की राह को अलम बनाया हजरत ज़ैनब कुबरा ने, शहदा के राह को अलम बनाया और लेकर चली हैं बीबी। शब आशूर, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन रिवायात के अंदर है कि शब आशूर जब इमाम हुसैन ने अपनी शहादत की खबर दी थी तो बीबी इतना रोई थी, बेहोश हो गई थी। मसाइब में सुने हैं ना ये चीजें, लेकिन जरा मैं अर्ज कर चुका हूं कि देखें, मसाइब के साथ साथ करबला के अंदर सब कुछ है। जहां मसाइब है ना वहां बहुत कुछ है। रिवायात में मिलता है कि ज़ैनब बिनते अली इतना गिरिया किया था बीबी ने कि बेहोश हो गई थी, लेकिन नहीं मालूम, रिवायत में नहीं मिलता कि इमाम हुसैन ने उनको कौन सा दर्स दिया, इमाम हुसैन ने उनको क्या पढ़ाया, इमाम हुसैन ने उन्हें उस वक्त शब आशूर क्या बताया, अल्लाह जाने। फिर पूरी तारीख गवाह है। असरे आशूर, पूरा आशूर का दिन देखें आप, पूरा आशूर का दिन, असरे आशूर तक, और फिर असरे आशूर से शाम गरीबा, शाम गरीबा से 11 मुहर्रम की सुबह असीर होना, 11 मुहर्रम से लेकर कूफा का बाजार, शाम का दरबार, जिंदान, और फिर सारे मराहिल तय करके जब ये बीबी वापस मदीना आई है, तारीख गवाह है, अली की बेटी रोई जरूर, फिर बेहोश नहीं हुई। तवज्जो है आप लोगों की, रोई जरूर ये करबला की शेर दिल खातून, मगर बेहोश नहीं हुई। क्यों? वाहे, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इमाम हुसैन ने ज़ैनब बिनते अली को दी थी, और जिन लोगों के कांधों पे जिम्मेदारियां आ जाए ना, वो एहसासात नहीं, वो अक्ल से काम करते, उनके अंदर शऊर होता है। रिस्पॉन्सिबल लोगों के अंदर शऊर होता है, रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जिम्मेदारियां ही तो इंसान को उठाती हैं। क्या चीज इंसान को उठा के मैदान में लाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। गैर जिम्मेदार कभी भी मैदान में नहीं आते। क्या जिम्मेदारी थी इमाम हुसैन के कांधे पर? अल्लाह के दीन को बचाना, जब भी तो निकले। क्या यह जिम्मेदारी सहाबा के ऊपर नहीं थी? सहाबा के कांधों पे भी थी।
ताबईन के कांधों पर भी थी, आम पब्लिक के कांधों पर भी थी। मर्द और जन हर एक के कांधे पे जिम्मेदारी अल्लाह ने ये रखी है। सिर्फ 1400 साल पहले नहीं, आज 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं। आज तक जितनी नस्लें आई हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारे बाद जितनी नस्लों ने ता कयामत आना है, हर एक के ऊपर अल्लाह ने जिम्मेदारी रखी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को हमें समझना होगा, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें समझना होगा। वो जिम्मेदारी है क्या? वो जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह के दीन को ना पायमाल करना है, ना होने देना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करबला हमें सिखाती है। ये ऐसी जिम्मेदार उम्मुल मसाइब अकीला बनी हाशिम पली किस गोद में। तो सुनिएगा, मैं एक मां का किरदार बताने जा रहा हूं, मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने जाता हूं। तरबियती पहलू है, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, सुनकर जाएं। देखें, विमेन एम्पावरमेंट, मैंने कल भी कहा था, विमेन एम्पावरमेंट, लिबरलिज्म, सिहोनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये जितने दुनिया में निजाम है, ये तो औरत को उरियां कर रहे हैं, ये तो औरत को बरहना कर रहे हैं, ये तो औरत को औरत के मकाम से गिरा रहे हैं, ये मकाम दे रहे हैं। दुपट्टा उतार के कहते तरक्की होगी, ये मकाम है। एजुकेशन, हिजाब उतार के, मकना उतार के, चादर उतार के एजुकेशन नहीं। एजुकेशन ये किसने कह दिया कि हम एजुकेट होंगे तो चादरें उतार के एजुकेट होंगे, हम दुपट्टे उतार के एजुकेट होंगे? नहीं। अल्लामा इकबाल ने इस मसले की नब्ज पहले ही पकड़ ली थी। अल्लामा इकबाल ने कब कहा था कि देखो, यूरोप के झांसे में नहीं आना, देखो मगरिब के झांसे में नहीं आना, देखो इन तमाम निजामों के झांसों में नहीं आना। ये इंसानियत के लिए नहीं बने, ये इंसान की ख्वाहिशात को भड़काने के लिए बने। इंसानियत का निजाम और है, इंसान को इंसान बनाने वाला निजाम और है, इंसान के जज्बात और एहसासात को भड़काने वाला निजाम और है। जिनसी ख्वाहिशात के निजाम है ये इंसान के लिए नहीं बने। इंसान की इफ्फत, इंसान का मकाम, इंसान का रुतबा, इंसान का इरफान, इंसान का मकाम, ये निजाम नहीं दे सकते। इंसान को मकाम देने के लिए जब बेटियां जमीन में दबा दी जाती थी, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। सरकारे दो आलम आए, पैगंबर अकरम आए, क्या करने आए कि ए हबीब, हम तुम्हें कौसर दे रहे हैं। तो सुनिएगा, हम तुम्हें कौसर दे रहे हैं। परवरदिगारा, ये कौसर क्या है? तो सुनिएगा, हमारा मौजू क्या है मजालिस का। कल मैंने बयान किया था, इन 5 रोजा मजलिसों में इंशाअल्लाह जो बाकी हैं आज और जो बाकी हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी खिदमत में वजाहत हो। कौसर और तकासुर दोनों सूरह हैं ना कुरान में, इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर आपने सबने सुना। एक और सूरह है कुरान में, अलहाकुमुत तकासुर, सूरह तकासुर। कौसर और तकासुर मिलते जुलते वर्ड हैं, मानी के एतबार से भी मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। तवज्जो सुनिएगा, कौसर में और तकासुर में अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें कौसर दिया है। कौसर के मसादीक, हजारों मसादीक बयान किए हैं मुफस्सिरीन ने। मिसदाक, मफहूम और चीज होती है, मिसदाक और चीज होती है। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू अगर खुश्क हो तो मसला नहीं है, खुश्क भी सुननी चाहिए, मौसम भी खुश्क है, तवज्जो मेरे साथ रहिएगा। मसादीक मफहूम की जगह नहीं लेते। मफहूम एक होता है, मसादीक हजारों होते हैं। फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल, मफहूम है पानी, मैंने आपको कहा पानी, आपके जहन में आया पानी, लेकिन पानी के मसादीक हैं। ठंडा पानी, गर्म पानी, कुएं का पानी, कुर पानी, कलील पानी, खारा पानी, समंदर का पानी, दरिया का पानी, नहर का पानी, नदी का पानी, नाले का पानी, ये सब मसादीक हैं, ये सब मसादीक हैं, लेकिन मफहूम एक ही है, पानी। मफहूम एक है, मसादीक नीचे हजारों हैं। अब इसी तरह कुरान समझने के लिए देखें, मैं कोशिश करूंगा इस आयत की तालिब इल्माना, जो भी टूटी फूटी हमारी गुफ्तगू होगी उसके अंदर मैं बयान कर सकूं, तालिब इल्माना तशरीह और तफसीर। कौसर के मसादीक मुफस्सिरीन ने बड़े बयान किए। कौसर का मानी सुनिए, मैं जवानों से अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्गान हमसे बेहतर जानते हैं, जवानान तवज्जो सुनिए। कौसर, व्हाट इज कौसर? आम माना, आम फहम माना, कौसर यानी ज्यादा, कसीर। देखें तवज्जो सुनिएगा, एक होता है कलील,
मिनिमम, एक होता है कलील, मैक्सिमम। लेकिन कौसर कलील नहीं है। कलील भी जब गिनती में ना आए तो उसे कौसर कहते हैं। कलील और कसीर से ऊपर, एक होता है कलील, एक है कसीर। कसीर नहीं, कसीर भी जब गिनती में नहीं आता, कसीर भी जब बढ़ जाता है। अब तवज्जो सुनिएगा, नहजुल बलागा का पहला खुतबा है, नहजुल बलागा का पहला खुतबा मार्फत इलाही से भरपूर, तौहीद परवरदिगार, इतनी आलीशान तौहीद, इतनी आलीशान तौहीद कि दूसरे इस बात के कायल हैं कि जैसी तौहीद अली ने बयान की ऐसी तौहीद बयान नहीं हो सकती, वाकई नहीं हो सकती। नहजुल बलागा के पहले खुतबे में अमीर कायनात फरमाते हैं कि परवरदिगारा तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं हो सकता। फिर कहते हैं परवरदिगारा अगर वला युहसी नअमाहुल आदून, आदून कौन है? आदून अल्लाह ताला के अकाउंटेंट हैं। कंपनी के अंदर अकाउंटेंट होते हैं ना, उनका काम क्या होता है? अकाउंट्स को मैनेज करना। कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला ने ऐसे रखे हैं जो अकाउंट मैनेज करते हैं। अकाउंट मतलब गिनती करना, उनका काम है गिनती करना। लेकिन तवज्जो सुनिएगा, अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी अजीब शान बयान की है परवरदिगार की। कहा कि परवरदिगारा अगर ये आदून, अगर ये शुमार करने वाले भी, अब कितने हैं कौन है वो तो हम नहीं जानते, हमारी अक्ल से मावरा है। कहा कि परवरदिगारा अगर ये शुमार करने वाले भी बैठ जाएं, तेरी नेमतों को शुमार करें तो तेरी नेमतों को गिनती में नहीं ला सकते। ये नहजुल बलागा है। अब तो सुनिएगा, अल्लाह ने ये बयान किया। अब कौसर किसे कहते हैं? कौसर कहते हैं यानी एक ना खत्म होने वाली बहर, ना खत्म होने वाली नहर, ना खत्म होने वाली नहर। अब तो सुनिएगा, कौसर के मसादीक क्या है? कौसर के मसादीक, हौज़े कौसर भी है। हौज़े कौसर क्या है? सबने सुना है ना, जन्नत के अंदर नहर है। जन्नत के अंदर दूध की नहर भी बयान हुई है, पानी की भी है और बहुत सारी चीजों की है। अब वो बहरहाल मसादीक हैं सारे। एक और हदीसों के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हदीस में आया कि महशर में और जन्नत जाने में, महशर का मैदान जो होगा, महशर का मैदान और जन्नत जाने में 50,000 साल का फासला है। तवज्जो सुनिएगा, महशर का जो मैदान लगा होगा ना, रोज़े क़यामत, रोज़े महशर, जिसको कुरान करीम ने रोज़े तगाबुन भी कहा है, रोज़े हिसाब किताब भी कहा है। रोज़े तगाबुन, सूरह तगाबुन मौजूद है कुरान में। महशर के दिन हिसाब किताब लगा होगा, भाई सारा हिसाब किताब लगा हुआ। अब रिवायात के अंदर आया कि 50,000 साल का फासला है महशर में और फैसला होने में, जन्नत दोज़ख जाने में। अब तवज्जो सुनिएगा, ये 50,000 साल आप सूरज और चांद के इससे गिनने नहीं बैठिएगा, क्योंकि उस वक्त ना चांद होगा ना सूरज होगा, फिर काउंटिंग कैसे होगी? तवज्जो सुनिएगा, 50,000 साल मुहावरा है, मिसाल है। फिर हुजूर फरमाते हैं ये 50,000 साल काफिर के लिए 50,000 साल होगा, मोमिन के लिए एक दिन से ज्यादा नहीं होगा। एक दिन कितना, एक दिन कितनी जल्दी गुजरता है आपका? गुजरता है जल्दी नहीं। जो कुछ नहीं भी करता आजकल उसका भी जल्दी गुजर जाता, क्योंकि मोबाइल है सबके पास, मोबाइल है, एक दिन तो यूं गुजरता है और स्क्रीन हमारा सारा टाइम ले रही है। बहरहाल क्योंकि एडिक्टेड हो गए, आदी हो गए हैं। अब तो सुनिएगा, कौसर एक ऐसी नहर बयान हुई रिवायात के अंदर है कि भाई कौसर वो जो 50,000 साल का फासला है ना महशर में और मैदान और जन्नत दोज़ख के फैसले के अंदर, हुजूर फरमाते हैं 50,000 साल के फासले में जो रोज़े महशर भी हिसाब और किताब के दिन भी जो नहर प्यास के वक्त हमारे शियों को सैराब करेगी वो हौज़े कौसर होगी। यानी तशय्यो के लिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अली के शियों के लिए कौसर, वो जो नहर है ना, नहर, वो अल्लाह उसको महशर के दिन भी उनकी प्यास को उससे बुझाएगा, जारी कर देगा। तो कौसर के हवाले से कई हदीसें आई, कौसर के हवाले से कई मुफस्सिरीन ने बयान किया कि फला कौसर, ये कौसर। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, ये सब के सब मिज़दाक़ हैं, मिज़दाक़। मफ़हूम कौसर क्या है? तवज्जो सुनिएगा, कौसर का माना क्या है? खैर कसीर। बस ये अपना माना जहन में रखें। मैं आगे तकासुर बयान करके फिर थोड़ा सा कंपैरिजन कराऊंगा, बाकी जो मतलब होंगे मैं इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में बयान करूंगा। कौसर खैर कसीर, ना खत्म होने वाला बहर, ना खत्म होने वाली नहर, ये हो गया कौसर। अब तकासुर क्या है? तकासुर भी कसरत को कहते हैं।
तकासुर भी ज्यादती को कहते हैं, तकासुर भी ज्यादा को कहते हैं, कुशादा को कहते हैं, कौसर भी ज्यादा को कहते हैं, कौसर भी ज्यादती को कहते हैं, कौसर भी ज्यादा होने को कहते हैं। मगर दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क यह है, मादी चीजों का ज्यादा होना तकासुर है, खैर का बढ़ जाना कौसर है। अब क्या करते थे अरब लोग? करते क्या थे? तवज्जो सुनिएगा, तारीख थोड़ी सी सुने। अरब करते क्या थे? अरब लोग घमंड करते थे। किस पे? मक्का के अंदर बैठ के कहते थे अल्हाकुमुत तकासुर। कोई घमंड करता था माल की ज्यादती पे। कोई कहता था भाई मेरे पास माल ज्यादा है, कोई कहता था मेरे पास औलाद ज्यादा है, कोई कहता था मेरे पास अज़वाज ज्यादा है, बीवियां ज्यादा हैं, कोई किसी और चीज पे फख्र करता था। ये फख्र मुबाहात के लिए अरबों ने अपने लिए ये कानून रखा हुआ था, जिसको कुरान ने कहा तकासुर। ये फख्र मुबाहात के लिए रखा था। लेकिन यहां पर अल्लाह ताला ने, अब बहुत सारे लोग फख्र करते थे, जैसे आज भी हम करते नहीं है फख्र। कोई अपने खानदान पे फख्र करता है, कोई अपने ज्यादा होने पे फख्र करता है। जैसे अगर कोई 7-8 भाई हैं तो वो फख्र करते हैं हम तो 7-8 भाई हैं, उनके महल्ले में भी बड़ी पावर होती है, सब डरते हैं किनसे? इनसे कोई पंगा नहीं लेना है वरना मुश्किल में आ जाएंगे। होता है ना भाई, एक असर होता है। ये तकासुर इसी तरह था। लोग घमंड करते थे कि भाई हम तो इतने सारे हैं। ज्यादा होने पर, क्वांटिटी पर फख्र करना। अब तवज्जो सुनिएगा, मैं अगर बहुत आसान में समेटूं ना 2 जुमलों में, ज्यादा क्वांटिटी पर फख्र को तकासुर कहते हैं, क्वालिटी पर फख्र को कौसर कहते हैं। क्वालिटी, मेयार। यहां कौसर अगर समझ आ गया तो समझे आगे गुफ्तगू आसान हो जाएगी। कौसर, अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें कौसर अता किया है। परवरदिगारा ये कौसर क्या है? अब कौसर के लिए जैसे मैंने कहा ना, हौज़े कौसर है, बहुत सारी चीजें। अब आपको सबको मालूम है, मैं उस रिवायत में नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे सुनिएगा। सबको मालूम है कब कहा अल्लाह के नबी ने, कब आयत आई, सबको पता है ना कब आई? पैगंबर अकरम के बेटे दुनिया से जा चुके थे, ठीक है। अब जब हुजूर के बेटे जा चुके तो बहुत सारे कुफार ताना देते थे कि आपकी नस्ल कैसे चलेगी। अच्छा, अल्लाह की हिकमत यह भी है कि नबी को बेटा दे के ले लिया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। भाई खुदा चाहता नस्ल चला सकता था बेटों से, लेकिन नहीं। एक ऐसे मुआशरे के अंदर अल्लाह ने यह मकाम दिखाना था। एक मकाम अल्लाह ने दिखाना है कि औरत का मकाम क्या है, खवातीन का मकाम क्या है। खवातीन को डिग्रेड इस्लाम नहीं करता, करते दूसरों ने किया है, इस्लाम में नहीं किया। कौसर अता किया। अब कौसर को अगर मैं और वजाहत करूं, कौसर शजराए तैयबा, तवज्जो सुनिएगा, शजराए तैयबा एक ऐसा शजरा जो कभी खत्म नहीं होगा। आप देख लें, अगर हम कौसर का एक मिसदाक देखें तो सादात हैं। सैयद सादात कौसर का मिसदाक है ना, कौसर यानी सादात, लेकिन मिसदाक हैं। अब तवज्जो सुनिएगा, मैं कौसर की वजाहत करने जा रहा हूं, अपने जहनों को आमादा रखिएगा और आधी बात सुन के नहीं जाना है, पूरी बात तवज्जो सुनिएगा। कौसर का मिसदाक सादात हैं। मिसदाक, अभी कौसर का मफहूम बड़ा है, कौसर का दायरा बड़ा है, कौसर की वुसअत बड़ी है, कौसर की तवानाई बड़ी है, शजरा तैयबा का दायरा और बड़ा है। अब सुनिएगा, एक भाई सादात, अब सादात को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, क्योंकि सैयद तो वैसे ही फख्र करते हैं, कुछ करें भी नहीं जब भी करते हैं, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। मैं अभी सैयदों पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, ठीक है ना, क्योंकि पेटी भाई हैं। अब साइड पे रखें, अब आगे बढ़ते हैं। भाई कौसर ठीक है, सादात ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको अगर मकाम दिया है, अगर ये मकाम दे दिया, इसमें मेरा और आपका क्या फख्र है? अल्लाह ने पैदा कर दिया सैयद घर में, अब पैदा तो हो गए, लेकिन एक चीज याद रखें, जुमला नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, अल्लाह मकाम उसे देता है जिसे जिम्मेदारियां भी देता। कोई जिम्मेदारी भी तो दी होगी, या बस ऐसे ही फ्री फंड के नकवी तकवी जैदी फ्री फंड में बना दिया अल्लाह ने। अब बेचारा जो नहीं बना उसका क्या कसूर है? जिसको जो नकवी तकवी जैदी आबदी फला नहीं है तो उसका क्या कसूर है? भाई वो तो अलग घर में पैदा हो गया, उसका कोई कसूर है? नहीं। अगर आपको ये मकाम दिया है तो कोई जिम्मेदारी भी दी है। ये मत समझे कि बस ऐसे ही मकाम मिल गया, हम तो बस इसी में फ्री फंड के बन गए और फिर इसी तरह चल देंगे। नहीं, अज़ीज़ान मोहतरम, कौसर समझिएगा, कौसर शजराए तैयबा है, कौसर खैर कसीर है, कौसर का दायरा बड़ा है। एक हो गया भाई जो जनाब सैयदा की औलाद है वो कौसर है, तय हो गया यहाँ, ठीक है, ये मिसदाक है। जनाब सैयदा और मौला अली की औलाद, यानी इन दो हस्तियों से जो वजूद में आए, जो नीचे औलाद इनकी नस्ल चली, वो कौसर है, ये मफहूम है, ये मिसदाक है।
अल्लाह ने कौसर अता किया, यानी अब रसूल की नस्ल पूरी दुनिया में फैली हुई है। ठीक है, लेकिन एक और चीज है, ये एक ऐसा शजरा तैयबा है जिसका दरवाजा अल्लाह ने खोल के रखा, बंद नहीं किया, खोल के रखा। आए अब आकर सुने, ये तो हो गया खूनी रिश्ता। कुछ खूनी रिश्ते होते हैं ना, यहां बैठे हैं बहुत सारे भाई होंगे, भाई भाई बहन बहन, भाई बहन का रिश्ता, ये हो गया खानदान खूनी रिश्ता। अब ये जो खूनी रिश्ता चला आया, मौला अली के सगे भाई कौन है? तालिब हैं, अकील हैं, जाफर हैं, ये खूनी रिश्ता हो गया। ठीक है, इमाम हुसैन के भाई, ये खूनी रिश्ता हो गया। इसी तरह तवज्जो सुनिएगा, एक रिश्ता और नहजुल बलागा में मौला ने बयान किया, बड़ा अजीब रिश्ता है ये रिश्ता शायद हमने अभी तक कायम नहीं किया, अपना कायम किया करें, ये रिश्ता बहुत अहम है। इमाम ने कहा गुज़िश्ता ज़मानों में मेरा एक दीनी भाई था, तवज्जो सुनिएगा, अख़ुन फ़िल्लाह, अल्लाह की खातिर मेरा एक भाई था जो मुझे आज बड़ा याद आता है। और जिस वक्त मौला अली ये जुमला कह रहे थे, अकील मौजूद थे। अकील कौन है? सगे भाई, खूनी रिश्ता है। सगे भाई की मौजूदगी में मौला कह रहे हैं मेरा एक दीनी भाई था जो मुझे बड़ा याद आता है। वो पता है क्यों याद आता है? फिर मौला ने नहजुल बलागा में कहा कि वो मेरी निगाह में अजीज था क्योंकि दुनिया उसकी निगाह में हकीर थी। तो जो कीजिएगा, ये क्वालिटी बयान कर रहे हैं, क्वालिटी इमाम बयान कर रहे हैं। इमाम कह रहे हैं दुनिया उसकी निगाह में हकीर थी, वो मेरी निगाह में अजीज था। वो जहां बोलना होता था वहां उसको कोई चुप नहीं करा सकता था, और जहां खामोश रहना होता था वहां वो बोलता नहीं था। अब हम इसके उलट हैं, ऐसा है नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं माशरत के साथ, हम उलट हैं। जहां नहीं बोलना होता वहां इतना बोलते हैं, जहां बोलना होता है वहां खामोश होके आ जाते हैं। लेकिन इमाम कह रहे हैं नहीं, ये मेरा दीनी भाई था, इसकी निगाह। फिर इमाम कह रहे थे जो इसको मिल जाता था, सुने क्वालिटी, दीनी भाई। अब ये दीनी भाई क्या है, ये रिश्ता समझिएगा। फिर मौला ने एक और सिफत बयान की। पहली सिफत क्या हो गई? दुनिया उसकी निगाह में हकीर थी, वो मेरी निगाह में अजीज था। वो क्या करता था? वो जहां बोलना होता था वहां बोलता था, यानी इतनी जजमेंट करता था, इतना बड़ा आकिल था, वो अक्लमंद था, बेवकूफ नहीं था, अक्लमंद आदमी था। वो जजमेंट कर लेता था कहां क्या बोलना है। यही तो बड़ा कमाल होता है, बोलना कमाल नहीं है, कहां कब क्या कैसे बोलना ये कमाल। अल्लाह ने जबान तो सबको दी है, बोलते रहो, जहां बोलना है बोलते रहो। और बाज लोग माजरत के साथ एक चीज पे फख्र करते हैं, वो क्या कहते हैं जब मिलते, क्या कहते हैं? किबला मैं तो बड़ा मुंह फट हूं। तो मुंह फट होना कोई कमाल तो नहीं है, रिवायत में तो जिक्र नहीं हुआ मुंह फट आदमी बड़ा कमाल है, नहीं। जहां अल्फाज को तोलना, जहां बोलना है वहां समझ के बोलना। अब तवज्जो सुनिएगा, इमाम ने कहा वो जहां बोलना होता था वहां बोलता था, जहां जरूरत नहीं है, जहां वो समझ जाता था सामने वाला बेवकूफ है, जाहिल है, सिर्फ बहस करेगा, वो वहां नहीं बोलता था। फिर इमाम ने एक और सिफत क्वालिटी बयान की, कहा कि ये मेरा दीनी भाई पता है क्या करता था? ये था, इस पर शिकम की हुकूमत नहीं थी, शिकम परस्त नहीं था, माल परस्त नहीं था, बिजनेस करता था, तिजारत करता था, बिजनेसमैन था, मगर माल परस्त नहीं था। अब ये बड़ी अजीब बात है, एक ऐसे बंदे की इमाम, मैं अभी नाम लूंगा आपके सबके जहन में आ जाएगा, एक ऐसे की इमाम सिफात बयान कर रहे हैं जो बिजनेसमैन भी गुजरा है, बेहतरीन कैलकुलेशन उसकी अच्छी थी, मौला उसको हिसाब किताब में साथ रखते थे। इतना बेहतरीन इमाम का ये अख़ुन फ़िल्लाह, अल्लाह की खातिर भाई था, मौला अली की खातिर, इमाम इसको साथ रखते थे। इमाम कह रहे हैं ये बिजनेसमैन था, ताजिर था, बेहतरीन तिजारत करता था, मगर दुनिया परस्त नहीं था, झूठा नहीं था, सच्चा आशिक खुदा था। अब दुनिया में नहीं था, इमाम कह रहे हैं था, यानी वो गुजर गया था। इमाम इस अपने दीनी भाई को याद करके रो रहे हैं। लोगों ने जब इमाम ने सारी सिफात बयान की, लोगों ने कहा ए अली, ए अली, ए फरजंद अबू तालिब, बताओ वो कौन था? कहा वो मेरा दीनी भाई अबू जर गफ्फारी था, वो मेरा अबू जर था, अबू जर मुझे याद आता है। अब तो ये सुनिएगा, दुनिया अली को याद करके रोती है, अली अबू जर को याद करते, अली अबू जर को याद करते, मेरा दीनी भाई था, वो मुझे याद आता है। अब ये कौन सा रिश्ता मौला ने कायम किया? दीनी भाई, सगा भाई अपनी जगह है, वो रिश्ता है, ये दीनी भाई। अब तवज्जो सुनिएगा, कौसर आपके जहन में है ना, शजरा तैयबा, खुला हुआ है ये दर, कौसर का दर खुला हुआ है, शजरा तैयबा। अब सुनिएगा अल्लाह ने ये शजरा कैसा रखा है। अब आता है एक शख्स, फारस की जमीन से निकलता है, हुजूर को ढूंढता हुआ आता है, ईमान की तलाश में आता है, माँ बाप आतिश परस्त हैं,
माँ बाप मजूसी हैं, माँ बाप काफिर हैं, मुसलमान नहीं हैं। ये आता है ईमान की तलाश में, मक्का आ जाता है, रसूल पे ईमान ले आता है, फिर इतना ये आगे बढ़ जाता है, इस शजरा कौसर में ऐसा दाखिल होता है कि नबी कहते हैं सलमान मिन्नो अहले बैत। सलमान मेरे अहले बैत में से है। सलमान अहले बैत में से क्यों या रसूल अल्लाह? अभी तो मुसलमानों ने किस किस को अहले बैत बना दिया, ऐसा ही है ना, क्योंकि मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है। जब बनाने पे आते हैं तो कुछ भी बना देते हैं, और ना मानने पे आए तो भाई मानने पे आए, अगर मानने पे आए तो कान की बात मानते हैं, ना मानने पे आए तो ऐलान भी नहीं मानते। अब ऐसी वुसअत कल्बी नहीं चाहिए हमें, ना मानने पे आए तो गदीर भी नहीं मान रहे, और अगर मानने पे आए तो कहते भाई कान में कह दिया था। ये कौन सी हदीसें हैं जो हुजूर ने कान में कह दी थी? ये कौन सी हदीसें हैं जो पैगंबर ने तुम्हारे कान में कह दी थी? ये गढ़ी हुई हदीसें हैं, किरतास पर गढ़ी हुई हदीसें हैं। जब रसूल तुम्हें भेज रहे थे जाओ, उसामा का लश्कर बना के भेज रहे थे जाओ, तो मदीना छोड़ के नहीं जा रहे थे, प्लानिंग थी रसूल की आंख बंद और फिर हम इस्लामी तालीमात को मस्क करें, अटैक करें फौरन। गुज़िश्ता रोज मैंने थोड़ी सी तारीख बयान की थी, मैं आज आपकी खिदमत में चंद चीजें बयान करता हूं। देखिए कौसर, कौसर आपके जहन में रहे, कौसर यानी शजरा तैयबा, खैर कसीर। सादात, मैंने कहा ना सादात को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखे, सादात कौसर का मिज़दाक हैं, उनको मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अब यहां आए, ये गैर सैयद भी क्या कौसर बन सकता है? शजरा कौसर में आ सकता है? हो सकता है ऐसा या नहीं? तो इसलिए अल्लाह ने दो शजरे रखे हैं, कायनात में दो ही शजरे हैं, एक शजरा तैयबा है, एक शजरा खबीसा है। दो ही शजरे हैं, तीसरा बीच में कोई नहीं है। ये तीसरे रास्ते हमेशा हम बनाते हैं, इस्लाम में तीसरा रास्ता दरमियान में कोई नहीं होता। अब तवज्जो सुनिएगा, कौसर यानी खैर कसीर, कौसर यानी ना खत्म होने वाली बहर, कौसर यानी शजरा तैयबा, कौसर यानी किरदार, कौसर यानी अखुन फिल्लाह, अल्लाह की खातिर दीनी भाई, कौसर यानी राह खुदा पे चलने वाला। अब आए, आकर देखें, अब आप अपने दिलों पे हाथ रखें, थोड़ी देर के लिए सोचें। अगर आप कौसर कहते हैं भाई ठीक है सिर्फ सादात कौसर होंगे, उनके अलावा कोई इस शजरे में नहीं आ सकता, तो आप मुझे बताएं शहदाए करबला कौसर हैं या नहीं है? मिस्दाक कौसर, मफहूम कौसर सिर्फ सैयदा है। तो मुझे सुनिएगा, पूरी बात सुन के जाइएगा, मैंने कहा ना आदि नहीं। मफहूम कौसर फकत सैयदा है, मिज़दाक़ कौसर सैयदा के वजूद की बरकत से जो किरदार मुआशरे को मुनव्वर करे वो मिज़दाक़ कौसर बन जाता। अब ये कौसर करते क्या है, कौसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब सुने कौसर और तकासुर में फर्क। तकासुर दीन से लेते हैं, कौसर दीन पे लगाते हैं। ये दो नजरियात हैं, ये दो खानदान हैं, ये दो ग्रोह हैं, ये दो रास्ते हैं, ये दो तहजीबें हैं, ये दो तमद्दुन हैं। तकासुर ले लेते हैं, तकासुर कहते हैं मौला आपके जरिए से हमें ये चाहिए, मौला आपके जरिए से ये चाहिए, तकासुर लेते हैं। कौसर कौन होते हैं? कौसर दीन पे लगाते हैं। कौसर पे जब आ जाती है, सुने, तकासुर ने जब इस्लाम कबूल किया, पांव में पहनने को चप्पल नहीं थी, कपड़ा नहीं था तन पे तानने को। जब दुनिया से गए मुंशियों को बुला के हिसाब हुआ है, इतना जमा किया था, तारीख है। ये तकासुर थे। और कौसर कौन है? जब इस्लाम कबूल किया, अरब की मालदार खातून थी, जब इस्लाम कबूल किया, तारीख है। और जब दुनिया से जा रही है, खजूर की टहनियां चूस के गुजारा कर। ये कौसर हैं। कौसर दुनिया परस्त नहीं होते, कौसर दुनिया में रहते हैं, कौसर दुनियादार होते हैं, दुनिया परस्त नहीं होते। कौसर अल्लाह के दीन की खातिर अल्लाह के दीन पे आंच आने नहीं देते। कौसर मुदाफे दीन होते हैं, कौसर मुदाफे अहले बैत होते हैं, कौसर मुदाफे विलायत होते हैं। ये कौसर होते हैं, कौसर की जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, कल मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में, आज मैं मुख्तसर मजलिस पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, कल आपकी खिदमत में मजीद मतालिब बयान करूंगा। आज माजरत के साथ एक जगह और कमिटमेंट है, इस वजह से मजलिस में आज मुख्तसर पढ़ूंगा आपकी खिदमत। तो मुझे सुनिएगा, कौसर खैर कसीर, ना खत्म होने वाला बहर। अज़ीज़ान मोहतरम, सलमान फारसी किस खानदान से था?
इधर शजरा तैयबा में आ जाता है। आया कर देखें, और ये होता है। सिर्फ खानदान पे फख्र नहीं करना है, किरदार पे। खुद अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में कहा, अल्लाह के नबी से सबसे ज्यादा करीब वो है, कौन है सबसे ज्यादा नबी के करीब? जिसका किरदार हुजूर से मैच हो जाए, जो हुजूर के साथ साथ रहे ज्यादा। ये मत समझो जो साथ साथ है तो ज्यादा करीब है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, तो मुझे सुनिएगा। बाज लोग फजीलत क्या जाहिर करते हैं कि भाई नबी के साथ जो ज्यादा रहा, नबी के साथ साथ जो ज्यादा रहा। अब तो मुझे सुनिएगा, बाज लोगों ने तो माज़अल्लाह ऐसी किताबें भी लिखी कि रसूलुल्लाह पर ब्लेम किया। रसूलुल्लाह को बोला कि क्या जरूरत थी, अगर इतने ही वो थे रसूलुल्लाह ने साथ क्यों रखा। तो मुझे सुनिएगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मसला वही है, अगर रसूल साथ ना रखते तो आप लोग कहते थोड़ा साथ रखते तो सही हो जाते। आज यही कहा जाता ना, साथ रखे नबी तो मसला, ना रखते तो मसला। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपके घर में बच्चे होते हैं ना छोटे, माँ बाप जब कहीं बाहर जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, मसलन फर्ज करें 2 बच्चे घर में, एक के ऊपर जरा भरोसा है कि ये ज्यादा शैतानी नहीं करेगा और सही रहेगा, लेकिन दूसरा बड़ा शरीर है, अगर उसको छोड़ा तो खतरा है। खतरा है नहीं है? तो फिर क्या करते हैं माँ बाप? साथ किसको लेके जाते हैं? जो ज्यादा शरीर हो या थोड़ा? फिर वो इसलिए ले जाते हैं ताकि उनकी निगरानी में रहेगा तो कंट्रोल रहेगा, उनकी निगरानी में जरा कंट्रोल रहेगा। अब इससे ज्यादा आसान जवाब नहीं है। अब खाली साथ रहना, मैंने कहा ना माशाल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों का बड़ा वुसअत क़ल्बी है। सहाबा की तारीफ में जब आते हैं तो सहाबा की डेफिनेशन बयान की ना, सहाबा की डेफिनेशन में बयान किया भाई ये भी सहाबी, ये भी सहाबी, लेकिन तशय्यो के अंदर एक मेयार है। तशय्यो मैं इसलिए नहीं कह रहा भाई हम खुद शिया हैं तो अपनी बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं, तशय्यो का एक मेयार है, मकतब तशय्यो का एक मेयार है। सहाबा बाज लोगों ने पता है किसको लिखा तारीख में, जो मदीना में एक बार आया, रसूल को सिर्फ सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, हाय हेलो कैसे हैं, हाउ आर यू, फाइन, चला गया, कहा ये भी सहाबी। माशाल्लाह इतनी बड़ी वुसअत क़ल्बी, ये भी सहाबी। उसने सिर्फ हाय हेलो किया है पैगंबर अकरम के साथ, सिर्फ उसने हाल अहवाल पूछा है, सिर्फ सलाम किया है, कहता ये भी सहाबी है, इसका भी एहतराम वाजिब है, क्योंकि हर सहाबी नबी जन्नती। सुना है ना स्लोगन, नारा, ये नारा सही मुस्लिम के खिलाफ है, ये नारा सही बुखारी की रिवायात के खिलाफ है, इमाम अहमद इब्ने हंबल के नजरिए के खिलाफ है, इमाम इब्ने तैमिया के नजरिए के खिलाफ है, इमाम अबू हनीफा के नजरिए के खिलाफ है। ये कैसे, मैं आपको साबित कर देता हूं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, 2209 नंबर हदीस है सही मुस्लिम के अंदर। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं रोज महशर मैं होऊंगा और कुछ सहाबा को मेरे लाया जाएगा और मेरे पास से गुजार के ले जाया जाएगा। मुस्लिम सुना रहा हूं, सही मुस्लिम, मेरे पास से गुजार के ले जाया जाएगा, जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा, मैं रोकूंगा, हुजूर फरमा रहे हैं मैं रोकूंगा और पूछूंगा भाई ये तो मेरे सहाबी थे, ये कहां जा रहे हैं? तो मलक जवाब देगा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, ये थे तो सहाबी मगर आपके बाद आपके दीन से मुनहरिफ हो गए थे, आपके बाद आपके दीन से पलट गए थे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो फिर इस हदीस का क्या करें? इस हदीस को कहां लेके जाएं? ये मेयार नहीं है, हदीसों का मेयार नहीं है। इसलिए तवज्जो सुनिएगा, वो एक शायर ने, मैं शेर नहीं पढ़ता लेकिन 2 जुमले सुन लें। जिस तरह हर फूल गुलाबी नहीं होता, वो एक शायर ने कहा, हर फूल जिस तरह से गुलाबी नहीं होता, जो भी हो मुनाफिक वो सहाबी नहीं होती। इसलिए मुनाफिक में और सहाबा में फर्क है। सहाबा का एहतराम करें, बिल्कुल सहाबा का एहतराम करना चाहिए, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो सुने, एक मेयार है, दीन का एक मेयार है, सहाबियत का मेयार है, ताबईन का एक मेयार है, हदीसों का मेयार है, मुफस्सिरों का एक मेयार है। क्वालिटी देखी जाती है दीन के अंदर, क्वांटिटी नहीं कि तादाद इतनी हो गई। वरना आप देख लें तशय्यो की जो बड़ी किताबें हैं, उसूल काफी हो गई, हदीस, दीगर बड़ी किताबें हो गई, हमारे कोई किताब सही नहीं है। सही नाम है किसी का सही, क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी रिवायतें मिक्स हैं, मुस्तनद भी हैं, ज़ईफ भी हैं, और हदीस के एतबार से दीगर
उनके जो है वो मरातिब भी हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो सुने, मकतब तशय्यो की खूबसूरती में बयान करना चाह रहा हूँ। मकतब तशय्यो सारी चीज़ें कबूल नहीं करता, लेकिन माजरत के साथ आजकल तशय्यो के अंदर भी बहुत सारे आ गए हैं, व्हाट्सएप पे चलाते काल अल इमाम बाकिर चला दो, मौला ने कहा नहीं चलाया तो कल तुम पे अजाब आ जाएगा। काला इमाम सादिक, काला इमाम बाकिर, झूठी रिवायात गढ़ गढ़ के आप। तशय्यो का मेयार है, पांचवें इमाम बैठे हैं, पांचवें इमाम के सामने एक सहाबी बैठा था, सुने इल्मुर रिजाल। क्या इल्मुर रिजाल? रावी चेक करने का, इन्वेस्टिगेशन। अब दीगर मुसलमानों के अंदर बहुत सारे ऐसे नजरियात हैं, उन्होंने कहा भाई हम रावी की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। पूछा आप किताबों में लिखा, कहा क्यों नहीं करेंगे रावी की इन्वेस्टिगेशन? कहा इसलिए नहीं करेंगे कि सहाबा की तौहीन है, रावी की इन्वेस्टिगेशन सहाबा की तौहीन है। ठीक है वो नहीं करते, लेकिन तशय्यो के अंदर है रावी की इन्वेस्टिगेशन, रावी की छानबीन। क्योंकि रावी कौन था? तवज्जो सुनिएगा, रावी मीडिया कवरेज है। आज मीडिया कवरेज होती है नहीं, रावी मीडिया कवरेज है। और तारीख गवाह है, मीडिया तो हमेशा बादशाहों के हाथ में रहा है। करबला का मीडिया किसके हाथ में था? तो मुझे सुनिएगा, शायद ये आपके लिए पब्लिक के लिए नया हो, लेकिन नई चीजें नहीं है, ये सब तारीख में मौजूद है। इमाम हुसैन को जो कत्ल करने आए थे ना, जो बिल्कुल मुस्तनद रिवायत है ना, मुस्तनद। अब वो माशाल्लाह शायरी में तो कुछ भी लिख दिया जाता है, वो मसला नहीं है। अब आप उनसे शायरों से झगड़िएगा नहीं, कभी ये सुन के जाए मौलाना ने तो ये कह दिया, नहीं झगड़ना नहीं है। किसी ने 9 लाख 90 लाख ऐसे लिखा लश्कर, लेकिन नहीं, 12,000 इमाम हुसैन को जो ज्यादा से ज्यादा जो तादाद बहुत ज्यादा मैक्सिमम करबला के अंदर कातिलों की मिली है, जो कत्ल करने लश्कर आया वो 30,000 है, 30,000। लेकिन आप जरा सोचें, कहां 72, कहां 30,000, फिर भी कम होते हैं 30,000। 72 के मुकाबले में 300 भी होते तो ज्यादा थे ना, तो वहां 30,000 है। लेकिन ये 30,000 सारे कत्ल फौजी नहीं थे, कत्ल करने नहीं आए थे। भाई हुर के साथ 1,000 का लश्कर आया, शिमर के साथ 4,000 का आया, उमर इब्न साद के साथ 3,000 का आया, फला के साथ शिमर बिन जिल जोशन के साथ 5,000 का लश्कर आया। इस तरह टोलियों में ही आए थे। जो लड़ने वाली फौज थी ना, जो भेजी गई थी, वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 12-13,000, 14,000। बाकी क्या थे? मीडिया कवरेज। करबला की मीडिया कवरेज करने आए थे। हाकिम वक्त का मीडिया, हाकिम वक्त का मीडिया। तो बाद में क्या मीडिया किसके हाथ में रहा? किसके हाथ में? माजरत के साथ मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं हकाइक बता रहा हूं। रावी की इन्वेस्टिगेशन मकतब तशय्यो में यह है, सामने इमाम बाकिर के शागिर्द बैठा है, एक हदीस हम तक आ रही है, देखें मकतब तशय्यो की खूबसूरती। सामने जो बैठा है ना, उसका एक कान खराब था, तो जो सुनिएगा, एक कान खराब था, दाएं कान से आवाज कम आती थी, बाएं से बिल्कुल क्लियर थी। अब उनसे जब हदीस आती है ना, तो हमारे मुहक्किकीन, उलमा, मराजे, फुक़हा, उराफा, मुहद्दिसीन, तहकीक करने वाले, रिसर्च करने वाले, अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सब गैर मुल्की हैं, क्योंकि यहां हमारे पास तो बड़े कम मिलते हैं। बहरहाल मुहक्किकीन, उराफा क्या करते हैं? अब जैसी हदीस आती है उनसे तो चेक पता है क्या किया जाता है? किस कान के रुख से इमाम बाकिर की तरफ बैठे थे, कौन सा रुख था, दायां या बायां? अगर बाएं से था तो ये कान जरा सही था, अब थोड़ा रिवायत के ऊपर एतमाद किया जा सकता है। लेकिन अगर दाएं से थे तो आवाज ही कम आती थी। अभी जैसे मिसाल के तौर पे आप मजलिस में मैं बोलूं कुछ, साउंड की वजह से आप सुन के कुछ चले जाएं। इसलिए तो मौला नहजुल बलागा में फरमाते रावियों की भी इकसाम है। कुछ रावी नासिख के वक्त मौजूद थे, मनसूख के वक्त गायब थे। जब हुक्म आया तो मौजूद थे, जब मनसूख हो गया तो थे नहीं। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो सुनिएगा, मकतब तशय्यो की खूबसूरती में ये बयान करना चाह रहा था कि देखिए हर चीज़ हमारे यहाँ एक खूबसूरत अंदाज से मौजूद है। मकतब तशय्यो अगर समझना है, मुझ जैसे लोगों की किरदारों से समझ नहीं आएगा, मुझ जैसे लोगों की बातों से समझ नहीं आएगा, मुझ जैसे लोगों के अफकार से, मुझ जैसे लोगों के उठने बैठने तौर तरीकों से समझ नहीं आएगा। तशय्यो हकीकी अगर समझना है, सादिक आले मोहम्मद की तालीमात से समझ आता है, असल वहां से समझ आता है। कौसर अल्लाह ने अता किया है नबी को। वाई कौसर, व्हाट इज कौसर? कौसर खैर कसीर। किस चीज का खैर कसीर दिया है अल्लाह ने? किस चीज का खैर कसीर? शजरा भी कसीर होगा, इल्म भी कसीर होगा, हिकमत भी कसीर होगी, दानाई भी कसीर होगी, फसाहत भी कसीर होगी, बलागत भी कसीर होगी, शुजाअत भी कसीर होगी, इस्मत भी कसीर होगी, दानाई भी कसीर होगी।
और इसी शजरे के अंदर इल्म इतना कसीर होगा कि सादिक आले मोहम्मद पैदा होगा, इल्म इतना कसीर होगा कि मूसा काजिम जैसे फर्जंदान ज़हरा पैदा होंगे। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, कौसर और तकासुर में फ़र्क क्या है? कौसर दीन के लिए निकलते हैं, तकासुर नहीं। तकासुर दीन से लेते हैं, कौसर दीन पे लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बस एक वाक़या बयान करके आज मसाइब की जानिब आ रहा हूँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं कल इंशाअल्लाह और बयान करूँगा, तो मुझे सुनिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, दीन पर लगाना, लेकिन ये हम जजमेंट कर लें कब कहाँ क्या लगाना है, ये ज़रूर हमें सेंस होना चाहिए। अगर सेंस नहीं हुआ, कुरान करीम कह रहा है अमल साले करो। अमल साले ये है कि आपको कब कहां क्या करना है, ये जजमेंट करें। हर नेक अमल साले नहीं है, मगर साले अमल नेक जरूर होना चाहिए। अब तो मुझे सुनिएगा, अब मिसाल के तौर पे अगर किसी को जरूरत है रोटी की, फर्ज करें किसी के घर में फाके हैं, आप ले जाके उसे नहजुल बलागा दे दें, कुरान दे दें, सहीफा सज्जादिया दे दें। मैंने कोई बुरा काम किया है? गलत काम किया है? मैंने बहुत अच्छा काम किया है, दुनिया की बेहतरीन किताबें दी हैं। मैंने नेक काम किया है, साले अमल नहीं किया। क्योंकि साले ये है कि उसको नीड क्या है। घर में फाके हैं, मैं किताब दे दूं, वो पढ़ेगा। भूख के अंदर हमें समझ आती है, जब रोजा हो तो कुरान भी समझ नहीं आ रहा होता। कहते हैं मौलाना दर्स छोटा करें अफ्तार के बाद, अफ्तार से पहले कहते हैं दर्स कम करें, अभी भूखे हैं समझ नहीं आ रहा। अफ्तार के बाद कहते हैं अब ऊँगे आ रही हैं, ज्यादा खा ली। वो रमजान में होता है या नहीं है? इसे तो ये सुनिएगा, नीड क्या है? अमल साले यानी नीड क्या है भाई, क्या चाहिए इसे? रोटी की जरूरत थी, हमने किताब दे दी। और इसी तरह किताब की जरूरत थी, रोटी पे रोटी दिए जा रहे हैं। ये भी अमल साले नहीं है। नीड क्या है? नीड क्या है? कब कहां दीन को क्या चाहिए? कब दीन को आपका माल चाहिए, कब दीन को आपका वजूद चाहिए, कब दीन को आपकी एबिलिटीज चाहिए, कब दीन को आपकी सलाहियतें चाहिए, और कब दीन को आपकी औलाद चाहिए। ये जजमेंट करो। जब 61 हिजरी इमाम हुसैन करबला जा रहे थे ना, वो किरदार मौजूद है ना, उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जौफी, मैंने पढ़ा है मुहर्रम में। उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र, इमाम से मुलाकात हुई, कूफा का रहने वाला था। इमाम ने कहा तुम हमारे साथ चलो। कहता मौला मैं नहीं आ सकता, मौत से डर लगता है। इमाम हुसैन को कह रहा है मैं मौत से डरता हूं। किरदार मौजूद है, कूफा का रहने वाला था और कोई बेदीन नहीं था, दीनदार आदमी था। मैं इंशाल्लाह कल वजाहत करूंगा दीनदार की और मजहबी की। मजहबी और होता है, दीनदार और होता है। दीन और मजहब में बड़ा फर्क है। अभी हमने एक ही जुमरे में सब कुछ डाल दिया है। हम सब मजहबी हैं, दीनदार तो ढूंढने से शायद मिल जाए। दीनदार और चीज है, मजहबी और चीज है। मैं इंशाल्लाह कल मजहब और दीन की वजाहत करूंगा अगर अल्लाह ने जिंदगी दी। बस तवज्जो सुनिएगा क्या कहता है ये इमाम हुसैन को। बड़ा दीनदार आदमी था, सौम सलात का पाबंद था, तहज्जुद गुजार था, सब कुछ था। इमाम हुसैन को कहता है देखें मौला मैं तो नहीं आ सकता, मेरा घोड़ा ले जाएं और मेरी तलवार ले जाएं। फिर इसने फजाइल भी बताया। कहने लगा ये मेरे पास जो घोड़ा है ना, ये इतना जबरदस्त है कि इस पर बैठ के जब मैंने दुश्मन का पीछा किया, दुश्मन बच नहीं सका। और किसी जंग से अगर इस पे बैठ के मैं भागा हूं तो दुश्मन मेरा पीछा नहीं कर पाया, पकड़ नहीं सका। तो ये भी भागा था जंगों से। उसने बता दिया इमाम हुसैन को। उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र नाम है इसका, तारीख में मौजूद है। इमाम जब करबला की जानिब जा रहे, रुक गया इमाम से कहा। इमाम ने कहा तो हमारे साथ आओगे इस मिशन में। इमाम ने अपना मिशन बताया, विजन बताया। इमाम ने अपना सारा बताया कि देखो मैं अल्लाह की राह में जा रहा हूं, मैं मार दिया जाऊंगा, कत्ल कर दिया जाऊंगा। इमाम हुसैन को कहता है मैं आता जरूर, मुझे मौत से डर लगता है। इमाम ने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या चाहते हो? कहा कि मैं ये मेरा घोड़ा और तलवार ले जाए। इमाम हुसैन के बड़े इबरतनाक जुमले हैं, हमारे लिए भी हैं। इमाम ने कहा हम गुमराहों का माल अल्लाह की राह में कबूल नहीं करते। ज़हरा की गोद में पला है हुसैन। हम गुमराहों का माल अल्लाह की राह में नहीं लेते। और ये गुमराह था। अच्छा इसके पास हराम माल नहीं था, हलाल था। हलाल भी हुसैन नहीं ले रहे। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, अहम नुकता। हलाल भी नहीं ले रहे। हराम तो चले, हराम तो इमाम लेंगे ही नहीं ना, हलाल भी नहीं ले रहे। वाई इमाम ने बता दिया कि सुन, इमाम बताना ये चाह रहे हैं अभी दीन को तेरे माल की नहीं, तेरे वजूद की जरूरत है। जहां दीन को माल की जरूरत है वहां माल, जहां दीन की वजूद की जरूरत है वहां वजूद। क्या दे सकते हो आप, कब कहां क्या देना है? कुरान कह रहा है यही अमल साले,
यही अमल सालेह है। ये जजमेंट करो कब कहां क्या देना है। अमल सालेह, अमल सालेह के लिए जब तुम अमल सालेह कर लोगे तो तुम कौसर के दायरे में आ जाओगे। इन्ना आतैना कल कौसर, फिर तुम शजरा तैयबा में आओगे। कब कहां क्या करना है, क्या करना है। अभी 10 दिन हुए हैं रसूल को गए हुए, फिदक हुकूमत ने लिया, सैयदा ने कदम उठाया, मस्जिद में गई, जाके खुतबा देती है, मन अमला सालेहम, यह है अमल सालेह। अगर सैयदा इस वक्त कदम ना उठाती, विलायत की बात दब के रह जाती। इस वक्त मुनाफिकों के चेहरे से अगर नकाब ना उतारती, आज हम भी रजी अल्लाह कह रहे होते। सैयदा को ये क्रेडिट जाता है, फातिमा ज़हरा को ये क्रेडिट जाता है। उतार दिया मुनाफिकीन के चेहरे से नकाब। काबुल अहबार भी खड़ा था, दीगर बड़े बड़े मुनाफिकीन खड़े थे। सैयदा ने जाके उनको खुतबा दे के इस्लाम पढ़ाया और बताया कि वो घराना जहां से इस्लाम फूट के निकलता है वो तुम्हारा नहीं, मेरा घराना। अना मादिन और रिसाला, यहां से निकला है इस्लाम, तुम बताओगे इस्लाम। फिर इस्लाम की ऐसी खूबसूरत तफसीर की। सैयदा ने जाके ये नहीं बताया कि नमाज पढ़ो तुम्हें हूरें मिलेंगी, रोजा रखो तुम्हारी जन्नत में नहर, फला रखो, हज करो। ये सैयदा ने लॉजिक बताई, हिकमत बताई। ऐ मुसलमानों, नमाज तुम्हारे वजूद से तकब्बुर को मिटाने के लिए। अगर तकब्बुर है तो तू नमाज नहीं पढ़ रहा। क्या कर रहा हूं? मशगला। कुछ अच्छे मशगले होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। इबादत भी एक मशगला बन जाती है। कब? जब उसके अंदर से रूह निकल जाए। रूह इबादत निकल गई, इबादत मशगला है। रूटीन पे हम लगे हुए, ऑटो पे, जैसे ये ऑटो बटन होते हैं ना, ऑटो पे लगा दो किसी को, वो रोज लगा हुआ, रोज उठता है, रोज फजर में भी उठता है, नमाज पढ़ता है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता मौलाना में, बड़ी अच्छी बात। एक दिन एक जवान तहज्जुद भी नहीं छोड़ता था, सो रहा था। एक दिन उसकी आंख नहीं खुली, आकर किसी बुजुर्ग ने उसे जगाया, झंझोड़ दिया। वो उठ गया, खड़ा हो गया, कहने लगा कि क्या हुआ। अरे फिर वो परेशान हुआ। आज उसने शुक्रिया अदा किया कि सरकार आपका बड़ा शुक्रिया, अगर आप नहीं आते तो मेरी आज फजर कज़ा हो जाती। कहा कि जरा अपना तारुफ भी करा दें। जब होश में आया कि पहले शुक्रिया अदा किया, फिर अपना तारुफ भी करा दें, आप कौन है। उसने कहा मैं इबलीस हूं। बड़ी अजीब बात है। उसने कहा शैतान मुझे जगाने आया, वो भी नमाज के लिए। हंसने लगा, परेशान हुआ, कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान के अच्छे कामों में भी शैतानत होती है। इसलिए जब शैतान अच्छे काम करे तो समझ जाना पीछे कोई बड़ी साजिश है। शैतान के अच्छे कामों में भी शैतानत। मौला अली को आके क्या कहता है, 12,000 प्यादे हैं मेरे पास, कहो तो मदीना में भर दूं, नाम तारीख में आप ढूंढ लिएगा। पढ़े तो मसला, ना पढ़े तो मसला, जाके ढूंढ लिएगा तारीख में, नाम मौजूद है। कहता है 12,000 प्यादे, आपका हक है विलायत। सही कह रहा था, मगर शैतान के काम में पीछे शैतानत थी। इमाम ने कहा सबसे पहले ये बता तू मुसलमान कब हुआ, तुझे कब से दर्द हो गया हमारा, तू मुसलमान है, भाग यहां से। भगा दिया इमाम ने। अब तो ये सुने, शैतान ने जब इसको जगाया, ये जवान कहने लगा भाई तुम मुझे जगा रहे, तुम तो शैतान हो, तुम्हारा काम बहकाना है या इबादत पे लगाना है। कहने लगा नहीं, आज मैं तुझे जगाने आया। क्या कि अब मुझे बता दो मकसद क्या है। फिर शैतान हंसने लगा। इसने कहा कि हाँ, मेरा मकसद ये था कि तू रोजाना फजर पढ़ के तेरे अंदर तकब्बुर आता था कि मुझ जैसा नमाजी कौन है। ये तो सब बेकार लोग हैं, सो रहे हैं, पड़े हुए सो रहे हैं, निखट्टू निकम्मे, अल्लाह से दूर लोग। मैं हूं अल्लाह का आशिक, मैं हूं, ये दिल में आता था। आज वो तेरा तकब्बुर टूटने वाला था, मैंने तुझे जगा के तकब्बुर बरकरार रखा। ज़हरा कह रही है नमाज पढ़ो मोमिनो, तकब्बुर नहीं। अल्लाह की जमीन पे अकड़ के नहीं चलो, जाना इसी जमीन के नीचे है। इतना आलीशान खुतबा दिया। इंशाअल्लाह मैं, अल्लाह ने जिंदगी दी, कल आपकी खिदमत में पूरा खुतबे का एक हिस्सा पढ़ूंगा, बाकायदा बयान करूंगा इंशाअल्लाह, उसकी तफसीर तशरीह। नमाज बुराई से रोकने के लिए, नमाज तकब्बुर खाक में मिलाने के लिए, रोज़ा तुम्हारे वजूद में इखलास पैदा करने के लिए, ज़कात तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए है, हज मुसलमानों की ताकत के लिए है। हज सनम कदों को सजदा करने के लिए नहीं है, हज मुसलमानों को ताकत के लिए है। फिर ज़हरा बयान करती रही, किसको बता रही है, ए जनाब सैयदा आपके सामने तो दीनदार लोग खड़े थे, काफिर थोड़ी थे, वो साहबा थे। उन दीनदारों को बीबी दीन पढ़ा रही थी।
क्योंकि मुश्किल पता है क्या है, मैं आज जुमला दे के जा रहा हूं, इंशाल्लाह कल वजाहत आइंदा मजालिस में करूंगा। दीन को नुकसान सबसे ज्यादा किसने दिया? 1400 साल तारीख उठा के पढ़े, आज तक 2 नवंबर 2025 आज तक, आज का दिन गुजर गया, 10 बज गए रात के, आज तक दीन को सबसे ज्यादा नुकसान दीनदारों ने दिया, बेदीनों ने नहीं दिया। बेदीन को सरोकार ही नहीं है दीन से, बेदीन क्यों देगा दीन को, उसको सरोकार ही नहीं है, दीनदारों ने दिया। कल इंशाल्लाह वजाहत करूंगा कि मजहबी हैं हम या दीनदार हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो जाहिरी तौर पे मजहबी थे, दीनदार नहीं थे। जो दीनदार हो जाए फिर वो कौसर बन जाता, कौसर के दायरे में आता, और ये कौसर निकल के दीन बचाते हैं। और ऐसा दीन बचाते हैं कि जब 28 रजब को मदीना से हुसैन निकलते हैं, कितने आए? इन्ना आतैना कल कौसर, कितने आते हैं बताएं मुझे, कितने आते हैं? पूरा मदीना साइलेंट, पूरा मक्का साइलेंट, बसरा खामोश, मदाइन खामोश, यमन खामोश। किरदार कौसर निकलते हैं अल्लाह के दीन को बचाने, किरदार कौसर निकलते हैं। और जब किरदार कौसर अल्लाह के दीन को बचाने निकलते हैं, एक बीबी आके कहती है, भैया मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूं, भैया मैं भी तो जाना चाहती हूं। हुसैन कहते हैं जाओ अपने शौहर से इजाजत ले लो। आकर कहती हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार से, देखो आप रोकेंगे तो नहीं जाऊंगी, शरई तौर पे तो आप हुक्म देंगे तो नहीं जाऊंगी, मगर एक चीज याद रखना, अगर ज़ैनब रुक गई मदीना में तो हुसैन के बगैर मर जाएगी। इन्ना आतैना कल कौसर, यह है कौसर, कौसर की गोद में पलने वाली कौसर। मफहूम ज़हरा है फकत, बाकी सब नीचे मिज़दाक़ के कौसर है। दर्जे के एतबार से भी मिज़दाक़ होता है। ज़ैनब पता कैसे तैयार हुई हैं? कैसे तैयार हुई अली की बेटी? भाई जब आंख खोली, मदीना में दरवाजा जलते हुए घर पे देखा। सुने बीबी के मसाइब, उम्मुल मसाइब कहा जाता है ना, उम्मुल मसाइब। अज़ादारों में मुख्तसर मसाइब पढ़ूंगा माजरत के साथ, वक्त की तंगी की वजह से बहुत मुख्तसर मसाइब पढ़ूंगा। गिरिया ऐसे करना जैसे हक बनता है। आशूरा की तरह मनाने हैं ये आयाम, आशूरा की तरह मनाने, क्योंकि हक बनता है ना। जिस माँ पे रोने आए हो ना, ये माँ भी तो असरे आशूर करबला पहुंच गई थी। करबला गई थी या नहीं? अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। कल भी रिवायत पढ़ी थी, आज भी सुनना। इमाम सादिक फरमाते हैं, मेरे जद पे बुलंद आवाज से रोया करो, सैयदा आपका गिरिया कबूल करे, पैगंबर अकरम ये गिरिया कबूल करें। रोते हुए अपनी शरई हाजात को भी तलब करना, ज़हरा का वसीला अल्लाह की बारगाह में दोगे, अल्लाह कबूल करता है। इलाही ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रल मस्तौदहा फीहा। हाँ अज़ादारो, जब अली की बेटी ने आंख खोली, कभी दरवाजा जल रहा है, दरवाजा मां के ऊपर गिरते हुए देखती है। फिर बाप का सर मस्जिद कोफा में जख्मी देखती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि तश्तरी में जब कै करते हैं ना हसन इब्ने अली, अजरुकुमुल्लाह। शायद मैं ज्यादा तवील मसाइब ना पढ़ सकूं, लेकिन गिरिये का हक अदा कर देना अज़ादारो, जैसे हक बनता। तश्तरी में क्या आ जाता है, जैसे ही हसन इब्ने अली कह करते हैं ना, हुसैन ये मंजर देख रहे हैं, जिगर के टुकड़े जहर के साथ कट कट के निकल के बाहर। ज़ैनब को खबर हुई, ज़ैनब घर में आने लगी। हसन कहते हैं, भैया हुसैन ये तश्तरी ले जाओ, ज़ैनब ना देख ले। मैं कहूंगा मौला ज़ैनब का इतना ख्याल है? मौला ज़ैनब का इतना ख्याल? 70 कदम के फासले से जब खड़ी होगी और कहेगी, ऐ सरजमीन करबला मुझे मेरा भाई नजर नहीं आता, और सरजमीन करबला बुलंद होगी, अल्लाह किसी बहन को ये मंजर ना दिखाए तो क्या देखेगी? शिमर खंजर को लहराता आ रहा होगा, हुसैन की पुश्त पे अपना नजिस घुटना रखेगा, और ज़ैनब मदीना रुख करके कहेगी, या रसूल अल्लाह, या ज़हरा, मातम करना, मातम करना। या हबीब अल्लाह, सुने हैं ना असरे आशूर ज़ैनब के जुमले, या हबीब अल्लाह, शिमर ने अर्श खुदा पे पांव रख दिया। अली की बेटी ने चिल्ला के कहा था, या हबीब अल्लाह, ए नबी खुदा,
अजरकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमले सुन लेना, एक रिवायत सुन लेना। जनाब सैयदा से मरबूत है इसलिए रिवायत पढ़ रहा हूँ। सुनो आज़ादारो, उम्मुल मसाइब ने क्या देखा क्या नहीं देखा। देखो कौसर, इन्ना आतैनकल कौसर, ये कौसर की गोद में पलने वाली कौसर है। इसने संभाला सब कुछ, माँ के विजन को, माँ के मिशन को संभाला, आगे बढ़ी है माँ के मकसद को लेके। हाँ आज़ादारो सुनो, जब बाजार में चल रही थी ना अली की बेटी, आप सुन के रो रहे हो, मैं सुन के रोता हूं, लेकिन रिवायत के अंदर एक जुमला ऐसा है, सैयद सज्जाद का सबसे बड़ा इम्तिहान पता है कहां था? सुनना आज़ादारो, मातम करना, मातम करना, अब सीनों पे हाथ मारना। इमाम सादिक कहते हैं बुलंद आवाज से गिरिया करो। औलाद वाले बैठे हो, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। बस हो गई गुफ्तगू तमाम। एक रिवायत सुन लेना, सैयद सज्जाद बाजार में चल रहे थे, अली की बेटी साथ साथ है मगर दिलासा दे रही है, क्योंकि हुसैन ने शब आशूर कहा था बहन सज्जाद का सहारा बनना है, सैयद सज्जाद को भी संभालना है, सकीना को भी संभालना है, मेरे मकसद को भी संभालना है, सबको लेके चली है अली की बेटी। हमारा सलाम बिनते अली पर। बस आखिरी चंद जुमले सुनो। सैयद सज्जाद जब चल रहे थे ना, बड़ा अजीब जुमला लिखा है मक्तल में, पांव तले जमीन निकल जाए, गैरतमंद का जिगर फट जाए अगर ये जुमला सही से अपने अंदर महसूस करे। सुनोगे? रावी कहता है सैयद सज्जाद पे बड़ा अजीब मरहला था। अजरकुमुल्लाह। आखिरी जुमले सुनो, मातम करना, रज़ा के दिन है, रोने के दिन है, आशूर से कम नहीं है, आशूर की तरह ही मनाना है। रावी कहता है सैयद सज्जाद चल रहे थे, चलते चलते सुनोगे क्या था? कहते हैं सज्जाद इतना मजबूर था, सज्जाद इतना गरीब था, सज्जाद इतना मजलूम था कि सर उठा नहीं सकता था। पूछा गया भाई क्यों सज्जाद सर नहीं उठा सकते थे? आज़ादारो सुनना, गैरतमंद आज़ादारो, मातम करना। आखिरी जुमले, मैं इसी पे बस मसाइब तमाम कर दूंगा। मातम करना, आखिरी जुमले सुनना। का सज्जाद सर उठा नहीं सकता था, का वजह क्या थी, क्यों क्या हुआ था? का सज्जाद के आगे भी सर थे। अजरकुमुल्लाह। या ज़हरा, या गरीब ज़हरा। आखिरी जुमले सुनना। कहता है रावी सज्जाद जब सर उठाते थे ना तो आगे भी सर थे, पीछे भी सर थे। सज्जाद जब आगे देखे तो सर चल रहे थे, पीछे गर्दन घुमाए तो सर चल रहे थे। बस फर्क इतना था, ए गयूर अज़ादारो, अल्लाह तुम्हारी गैरतों को सलामत रखे। तुम्हारी गैरतें सलामत रहेंगी तो औरतों का पर्दा सलामत रहेगा। मातम करना। आखिरी जुमले सुनना। कहता है आगे सर उठाए सज्जाद तो सर थे, पीछे गर्दन घुमाए तो सर थे। कहा वजह क्या थी, मसला क्या था? का मसला ये था जब सर आगे देखता था सज्जाद तो कटे हुए सर थे, पीछे गर्दन घुमाए तो खुले हुए सर। पीछे गर्दन करे तो खुले हुए सर थे। शाम का जिंदान आया। सुनोगे फातिमा कहां थी, सैयदा कहां थी? अजरकुमुल्लाह। बस सुन लेना, दो जुमले सुन लेना, मातम करना। शाम का जिंदान है। कैद खाने की रिवायत तो सुनी है ना बहुत, एक रिवायत और सुन लेना जो मक्तल में लिखी है, मकातिल में लिखी है। शाम का जिंदान है। दरबान आके कहता है सैयद सज्जाद जाकर अपनी बीबियों को कहो कि रात को निकल के बाहर सड़क पे गिरिया मत किया करें। शाम का जिंदान है। अज़ादारो सुनना, बड़ी अजीब रिवायत है। सैयद सज्जाद कहते हैं कि ए दरबान ये बता, दरबान तो तू बंद करता है ना, जिंदान तो तू बंद करता है? कहा कि हाँ मैं बंद करता हूं। क्या कोई कैदी जिंदान से बाहर होता है? कहा नहीं होता। कहा तू ताला तू लगाता है ना? कहा मैं लगाता हूं। कहा फिर कैसे कह सकता है कि बाहर कोई बीबी निकल के शाहरा पे बैठ के गिरिया करती है? अजरकुमुल्लाह। खुदा किसी मां को यह मंजर ना दिखाए। कहा तू कैसे कह सकता है? कहा मैंने देखा है। कहा क्या देखा है? कहा लिबास बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम्हारी बीबियों का है। कहा गिरिया बिल्कुल ऐसा है जैसे तेरी बीबियों का है। का आवाज बिल्कुल ऐसी है जैसे तेरी बीबियों की है। ऐ गैरतमंद अज़ादारो क्या सुन रहे हो? बस आखिरी जुमले सुनना। सज्जाद कहने लगे आज रात तू मुझे लेके चलना। कहा ठीक है। उस रात वो आया, दरबान आया। रिवायत सुनो, शाम की रिवायत है। दरबान आया, आकर कहने लगा ऐ सैयद सज्जाद, ऐ सैयद सज्जाद चलो मैं तुम्हें दिखाऊं कोई औरत है
शहरा पे बैठ के गिरिया करती है। सैयद सज्जाद ने कहा मैं अपनी फूफी ज़ैनब को भी लेना चाहता हूँ। ज़ैनब कुबरा को बुलाया गया। सज्जाद और ज़ैनब उस शहरा के ऊपर गए, जिंदान से बाहर गए। सुनोगे आज़ादारो, आखिरी जुमले सुनो। जब जिंदान के बाहर उस शहरा पे पहुंचे ना, तो देखा कोई बीबी है सर झुका के बैठी है और कहती है हाय गरीब हुसैन, हाय प्यासा हुसैन। ज़ैनब ने कहा ऐ बीबी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूं, आलम गुर्बत में आके तू मेरे हुसैन को रोती है, तू गिरिया करती है, तू दिलासा देती है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूं। फातिमा ने सर उठाया, आ मेरी बेटी मेरे गले लग जा, मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। जब हुसैन ज़िबा हुआ मैं साथ थी, जब बाजार में तू थी मैं साथ थी, जब जिंदान में तू आई मैं साथ थी। अब तेरे साथ कैद की सऊबतें झेल रही हूं। मैं फातिमा ज़हरा अपनी पसलियों का दर्द अस्सलामु अलैकी या फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकी या शरीकतुल हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। परवरदिगारा, हाज़रीन की तमाम शरई हाजात को मुस्तजाब फरमा, हम सब की शरई हाजात को मुस्तजाब फरमा। बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, शुरकाए मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। हमें हकीकतन हज़रत सैयदा की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जनाब सैयदा के मकसद को समझने की, उसको अमल करने की और पूरी दुनिया तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुमलिकत पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, पाकिस्तान से ख़यानत करने वालों को रुस्वा फरमा। परवरदिगारा, ज़ालिमीन को नाबूद फरमा, मज़लूमीन को कामयाबी अता फरमा। इमाम आसर के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिर व मददगारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।